Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, today is our English literature turn. So today we shall read English literature in our today's class. And students, today we are going to start a new chapter of our English literature book as we semester. And students, the number of this new chapter is chapter 10 and the name of this chapter 10 is A Naughty Little Comet. Okay, so students, today we shall read a new chapter 10, A Naughty Little Comet of our English literature book as we semester in our today's class. And students, in this chapter 10, A Naughty Little Comet, today's our topics are, our first number topic is about the telescope, and students our second number topic is summary of first to fifth number stanzas, which is on page number 102 of this chapter 10, A Naughty Little Comet. Okay, so all students, please pay partial attention in your class and listen to my words clearly, because today firstly we shall read about the telescope and then we shall read and explain summary of first to fifth number stanzas, which is on page number 102 of this chapter 10, A Naughty Little Comet of our English literature book as we semester in our today's class. Okay, so all students, let's see chapter 10. Students, the name of this chapter 10 is A Naughty Little Comet. A means ek, naughty means sararti, little means choti, comet. Students, here the meaning of comet is a mass of ice and dust that moves around the sun and looks like a bright star with a tail. Okay, it's mean कि बर्फ और धूल से बना हुआ एक पिंड या एक द्रव्यमान जो सूर्य के चारों ओर घूमता है और एक टेल के साथ, एक पूंछ के साथ एक ब्राइट स्टार की तरह दिखता है, एक चमकीला तारा की तरह दिखता है. ओके, तो स्टूडेंट्स, कॉमेट इज बेसिकली मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट. जो कॉमेट होता है, ओके, वो अधिकांश या मूल रूप से बर्फ और धूल से बना हुआ होता है. ओके, द हिंदी मीन ऑफ कॉमेट इज धूमकेतु. ओके, The name of this chapter 10 is A Naughty Little Comet. It's mean एक शरारती छोटी धूमकेतु. Okay, students, this chapter 10 A Naughty Little Comet is based on science and technology. ये जो हमारा चैप्टर है ना, A Naughty Little Comet, it's mean एक शरारती छोटी सी धूमकेतु, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है. साइंस इट्स मीन विज्ञान, एंड मीन्स और टेक्नोलॉजी इट्स मीन तकनीकी. ओके, तो ये चैप्टर 10 ए नॉटी लिटिल कॉमेट इट्स मीन एक शरारती छोटी सी धूमकेतु विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है. क्लियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी शैल रीड दैट हाउ वाज द कॉमेट, ओके, एंड व्हाट डिड इट डू इन इट्स लाइफ एंड एट लास्ट व्हाट हैपेंड विद इट. ओके, तो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि कॉमेट कैसी थी. ओके, इसने अपनी लाइफ में क्या क्या किया एंड एट लास्ट आखिर में उसके साथ क्या हुआ. ओके, वी शैल रीड ऑल दीज थिंग्स एंड फाइंड आउट आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर 10 A Naughty Little Comet. ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर 10 A Naughty Little Comet में फाइंड आउट करेंगे. ओके, कि कॉमेट कैसी थी, इसने अपनी लाइफ में क्या किया और एट लास्ट उसके साथ क्या हुआ. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्टली वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द टेलीस्कोप. ओके, सो लेट्स सी. Have you ever looked up at the night sky and wished that you could see the moon or stars more clearly? Okay. Have you ever looked up? It's mean क्या आपने कभी ऊपर देखा है? At the night, रात को. Okay, sky, आसमान में. And means और, wish means इच्छा की है, कामना की है या चाहा है. That means कि you could see, आप देख सकते, the moon और the moon और stars. It's mean कि चांद को और सितारों को more clearly. It's mean और अधिक स्पष्टता से, और अधिक उसे अच्छे से. Okay, clearly it's mean होता है स्पष्ट रूप से या अच्छे से. Have you ever looked up at the night sky and wished that you could see the moon or stars more clearly? It's mean क्या आपने कभी रात में ऊपर आसमान में देखा है और चांद या सितारों को और अधिक स्पष्टता से देखने के लिए और अधिक क्लियरली देखने के लिए और अधिक सफाई से देखने के लिए आपने इच्छा की है. ओके, तो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी रात में ऊपर आसमान में देखा है और चांद या सितारों को और अधिक क्लियरली और अधिक स्पष्ट रूप से देखने की इच्छा की है? ए टेलीस्कोप कैन हेल्प विद दैट. ओके, एक जो टेलीस्कोप होते हैं ना, वो इस वर्क में हेल्प कर सकता है. ओके, तो लेट्स सी नेक्स्ट. दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू लुक एट ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार अवे बाय गैदरिंग लाइट. स्टूडेंट्स, टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक यंत्र होता है, और दिस इंस्ट्रूमेंट, ओके, यह यंत्र इज यूज, इट्स मीन प्रयोग किया जाता है, टू लुक, इट्स मीन देखने के लिए, एट ऑब्जेक्ट, इट्स मीन वस्तुओं को, दैट आर फार अवे, जो दूर होती है, बाय गैदरिंग लाइट, लाइट को गैदर करके, इट्स मीन कि प्रकाश को इकट्ठा करके. ओके, तो स्टूडेंट्स, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू लुक एट ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार अवे बाय गैदरिंग लाइट. इट्स मीन यह यंत्र लाइट को गैदर करके, इट्स मीन कि प्रकाश को इकट्ठा करके दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है. ओके, तो टेलीस्कोप की हेल्प से हम जो ऑब्जेक्ट्स वो हमसे बहुत फार होते, बहुत दूर होते,
उनको हम क्लियरली देख सकते हैं। ओके, टेलीस्कोप कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टेलीस्कोपोस। ओके, तो स्टूडेंट जो टेलीस्कोप है ये ग्रीक वर्ड से आया और वो ग्रीक वर्ड क्या है? टेलीस्कोपोस। ओके, इट मीन्स, इसका मीन है, इसका मतलब है फार सीइंग, इट्स मीन दूर का देखना। ओके, पीपल जनरली यूज टेलीस्कोप्स टू लुक एट ऑब्जेक्ट्स इन आउटर स्पेस लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स एंड कॉमेट्स। ओके, पीपल मीन्स लोग, जनरली इट्स मीन कि सामान्य रूप से या आम तौर पे। ओके, यूज मीन्स प्रयोग करते टेलीस्कोप्स टू लुक। ओके, इट्स मीन देखने के लिए, एट ऑब्जेक्ट इट्स मीन वस्तुओं को, इन मीन्स में आउटर स्पेस, इट्स मीन इन आउटर स्पेस, इट्स मीन बाहर अंतरिक्ष में, लाइक जैसे प्लैनेट इट्स मीन ग्रह, स्टार्स इट्स मीन तारे, एंड मीन्स और कॉमेट्स इट्स मीन धूमकेतु। ओके, तो पीपल जनरली यूज टेलीस्कोप्स टू लुक एट ऑब्जेक्ट्स इन आउटर स्पेस लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स एंड कॉमेट्स। इट्स मीन लोग सामान्य रूप से या आम तौर से टेलीस्कोप का प्रयोग बाहर अंतरिक्ष में जैसे ग्रह, तारे और धूमकेतु जैसी वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी नेक्स्ट लाइन। Invented in the 1600 as telescopes were first used to look for ships that were far in distance. Okay, तो स्टूडेंट्स जो टेलीस्कोप है इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था? तो टेलीस्कोप का आविष्कार 1600s में हुआ था, 1600 शताब्दी में हुआ था। टेलीस्कोप्स वर फर्स्ट यूज्ड टू लुक फॉर शिप्स दैट वर फार इन डिस्टेंस। तो जो टेलीस्कोप का फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, पहली बार प्रयोग किया गया था, वो शिप को देखने के लिए किया गया था, उसकी डिस्टेंस को देखने के लिए, और वो कितनी दूर है इसको देखने के लिए किया गया था। ओके, इट इज बिलीव दैट इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो was the first one to point a telescope at the sky. ओके, तो स्टूडेंट्स इट इज बिलीव्ड, इस पर विश्वास किया जाता है कि जो इटालियन साइंटिस्ट है, ओके, इटली के एक साइंटिस्ट है, ओके, इटली के एक वैज्ञानिक है, एंड स्टूडेंट्स उनका नेम क्या है? गैलीलियो। तो जो हमारे इटालियन साइंटिस्ट है गैलीलियो, इन्होंने फर्स्ट टाइम टेलीस्कोप का प्रयोग किया था। ओके, स्काई में इसे पॉइंट करने के लिए, आसमान में देखने के लिए टेलीस्कोप का फर्स्ट टाइम यूज इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो ने किया था। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड about telescope and I hope you must have understood our first number topic about the telescope. Okay, so students, turn your page forward and open page number 102 because now we are going to start this chapter 10, a naughty little comet. Okay, so let's read this chapter 10, a naughty little comet. Do you know what Milky Way is? Okay, do you know, क्या आप जानते हैं what means क्या? Milky Way is, Milky Way it's mean galaxy, आकाश गंगा, it means है। Okay, what do you know what Milky Way is? It's mean कि क्या आप जानते हैं कि मिल्की वे क्या है? ओके, इट्स मीन कि आकाश गंगा क्या है? ओके, इट इज अ गैलेक्सी दैट कंटेन्स आवर सोलर सिस्टम। ओके, इट इज अ गैलेक्सी, गैलेक्सी मीन्स होता है आकाश गंगा। ओके, ये एक गैलेक्सी है, एक आकाश गंगा है। ओके, दैट कंटेन्स आवर सोलर सिस्टम, जो हमारे सोलर सिस्टम को कंटेन्स करती है। ओके, इट्स मीन कि ये जो मिल्की वे है ये एक आकाश गंगा है और जिसमें हमारे सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल पाए जाते हैं। ओके, एंड लेट्स सी नेक्स्ट, देयर आर सेवरल स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स, कॉमेट्स एंड अदर यूनिडेंटिफाइड रॉक्स इन अवर गैलेक्सी। देयर आर सेवरल, इट्स मीन कि यहाँ पे है, सेवरल इट्स मीन होता है मैनी, कई या बहुत से, स्टार्स इट्स मीन तारे, प्लैनेट्स इट्स मीन ग्रह, मून्स इट्स मीन चंद्रमा, कॉमेट्स इट्स मीन धूमकेतु, एंड मीन्स और अदर मीन्स दूसरे, यूनिडेंटिफाइड इट्स मीन होता है कि अज्ञात। ओके, रॉक्स इट्स मीन चट्टाने, यूनिडेंटिफाइड रॉक्स इट्स मीन कि अज्ञात चट्टाने, इन अवर गैलेक्सी इट्स मीन हमारी आकाश गंगा में। ओके, गैलेक्सी मीन्स होता है आकाश गंगा। ओके, देयर आर सेवरल स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स, कॉमेट्स एंड अदर यूनिडेंटिफाइड रॉक्स इन अवर गैलेक्सी, इट्स मीन कि हमारी आकाश गंगा में बहुत सारे तारे, ग्रह, चंद्रमा, धूमकेतु और दूसरी अज्ञात चट्टाने हैं। ओके, लेट अस रीड दिस पोम अबाउट अ नॉटी कॉमेट। ओके, लेट अस रीड, चलिए हम पढ़ते हैं। दिस पोम इट्स मीन इस कविता, अबाउट मीन्स बारे में, ए मीन्स एक, नॉटी कॉमेट इट्स मीन शरारती धूमकेतु। ओके, लेट अस रीड दिस पोम अबाउट अ नॉटी कॉमेट, इट्स मीन चलिए हम एक शरारती धूमकेतु के बारे में इस कविता को पढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स रीड दिस पोम। There was a little comet who lived near the Milky Way. She loved to wander out at night and jump about and play. Okay, there was a little comet. Students, here the meaning of comet is a mass of ice and dust that moves around the sun and looks like a bright star with a tail. Okay, it's mean कि बर्फ और धूल से बना हुआ एक पिंड या एक द्रव्यमान
जो सूर्य के चारों ओर घूमता है और एक टेल के साथ एक ब्राइट स्टार की तरह दिखाई देता है। ओके, एक पूंछ के साथ एक चमकते हुए तारे की तरह दिखाई देता है। ओके, एंड स्टूडेंट्स, कॉमेट इज मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट। ओके, और कॉमेट किससे बना होता है? आइस एंड डस्ट से बना होता है। इट्स मीन बर्फ और धूल से बना होता है। ओके, देयर वाज अ लिटिल कॉमेट। इट्स मीन कि एक छोटी सी धूमकेतु थी। हु लिव्ड नियर द मिल्की वे। हु मीन्स जो, लिव्ड मीन्स रहती थी, नियर मीन्स पास में, द मिल्की वे इट्स मीन कि गैलेक्सी आकाशगंगा। ओके, हु लिव्ड नियर द मिल्की वे इट्स मीन कि जो आकाशगंगा के पास में रहती थी। ओके, देयर वाज अ लिटिल कॉमेट हु लिव्ड नियर द मिल्की वे इट्स मीन कि एक छोटी सी धूमकेतु थी जो मिल्की वे इट्स मीन गैलेक्सी आकाशगंगा के पास रहती थी। ओके, सी लव टू वेंडर आउट एट नाइट एंड जंप अबाउट एंड प्ले। ओके, सी मीन्स वह, लव्ड मीन्स बहुत पसंद करती थी, टू वेंडर आउट इट्स मीन बाहर घूमना, एट नाइट इट्स मीन रात के समय में, एंड मीन्स और, जंप मीन्स कूदना, अबाउट एंड प्ले और खेलना। ओके, सी लव टू वेंडर आउट एट नाइट एंड जंप अबाउट एंड प्ले इट्स मीन कि वह रात में बाहर घूमना और कूदना और खेलना बहुत पसंद करती थी। ओके, तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि एक छोटी सी धूमकेतु थी जो मिल्की वे इट्स मीन कि आकाशगंगा के पास में रहती थी और वह रात में बाहर घूमना, कूदना और खेलना बहुत पसंद करती थी। ओके, The mother of the comet was a very good old star. She used to scold her reckless child for venturing out too far. Okay, the mother of the comet. Okay, तो the mother means माँ, of means की, the comet it's mean धूमकेतु, the mother of the comet it's mean कि धूमकेतु की माँ, was means थी, a means एक, very means बहुत, good means अच्छी, old means पुराना, star it's mean तारा। Okay, the mother of the comet was a very good old star. It's mean कि धूमकेतु की माँ एक बहुत अच्छी पुराना तारा थी। ओके, सी यूज टू स्कॉल्ड हर, सी मीन्स वह, यूज टू इट्स मीन प्राय या अक्सर। ओके, स्कॉल्ड हर इट्स मीन उसे डांटती थी। रेकलेस, स्टूडेंट्स, हियर द मीनिंग ऑफ रेकलेस इज showing a lack of care about danger and the possible results of your actions. It's mean कि खतरे के बारे में परवाह में कमी को दिखाना। ओके, और जिसका जो और जो आपके जो एक्शंस होंगे, आपकी जो क्रिया होगी, आपका जो वर्क होगा, उसका जो रिजल्ट है ना वो पॉसिबल हो। इट्स मीन कि उनके जो परिणाम हो वो संभव, इसे बोलते हैं रेकलेस। इट्स मीन कि लापरवाह। ओके, चाइल्ड मीन्स बच्चा, फॉर मीन्स के लिए, वेंटूरिंग आउट टू फॉर। ओके, इट्स मीन कि खेलते हुए बहुत दूर निकल जाना। ओके, सी यूज टू स्कॉल्ड हर रेकलेस चाइल्ड फॉर वेंटूरिंग आउट टू फॉर। इट्स मीन कि वह अक्सर या वह प्राय या वह हमेशा अपने उस लापरवाह बच्ची को डांटती थी। ओके, क्यों डांटती थी? क्योंकि वो खेलते खेलते बहुत दूर चली जाती थी। ओके, तो वह अक्सर या वह हमेशा अपनी रेकलेस चाइल्ड को, अपनी नॉटी चाइल्ड को, अपनी शरारती बच्ची को, ओके, लापरवाह बच्ची को हमेशा खेलते खेलते बहुत दूर जाने के लिए डांटती रहती थी। तो वो जो नॉटी लिटिल कॉमेट थी ना, तो उसकी माँ हमेशा उसे डांटा करती थी क्योंकि वो खेलते खेलते बहुत दूर चली जाती थी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा। सी टोल्ड हर ऑफ द ugly son who loved on stars to sup and who asked no better pastime than in gobbling comets up. Okay, she means where, told means कहती थी, told is the second form of tell, tell means कहना, told means कहती थी, her means उससे, of the augury. Students, here the meaning of augury, that cruel and frightening kind who eats people. It's mean कि एक निर्दयी या क्रूर और भयानक या डरावना राक्षस जो लोगों को खा जाता है उसे बोलते हैं ऑग्री। ओके, सन इट्स मीन सूरज, हु मीन्स जो, लव इट्स मीन पसंद करता था, ऑन स्टार्स टू सब। ओके, इट्स मीन स्टार्स मीन तारों को, सब। स्टूडेंट्स, हियर द मीनिंग ऑफ सब, SUP सब। सब का मीनिंग होता है कि टेक ड्रिंक और लिक्विड फूड बाय सिप्स और स्पूनफुल्स। ओके, इट्स मीन कि किसी चीज़ को लेना। इट्स मीन कि पीना या जो भी लिक्विड फूड होता है, तरल पदार्थ होते हैं, तरल खाना होता है, उसे सिप करना। इट्स मीन कि थोड़ा थोड़ा सा उसे लेना, चुस्की लेना या घूट घूट का पीना। जैसे कि हम कॉफ़ी सिप करते हैं ना, ओके, वैसे जैसे कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, तो हम उसे सिप करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा पीते हैं चुस्की ले लेके, है ना। तो सिप मीन्स होता है चुस्की लेना।
और स्पूनफुल या तो स्पूनफुल करके लेना, ओके, इट्स मीन कि चम्मच भर के लेना। तो हियर द मीनिंग ऑफ सुप दैट, सब मीन्स हो गया कि किसी चीज को थोड़ा थोड़ा करके लेना या चुस्की लेना, ओके, या घूट घूट करके लेना। जैसे हम ड्रिंक में हम जैसे कॉफ़ी टी लेते हैं, और जैसे लिक्विड फूड के इंक्लूडेड हमारा आ जाएगा पोरीज, इसमें दलिया मस आ जाएगा, खिचड़ी आ जाएगा, जिसे हम स्पून फुल कर लेते हैं, है ना। तो क्या होता है कि सी टोल्ड हर ऑफ द ऑगरी सन हु लव्ड ऑन स्टार्स टू सप, इट्स मीन कि वह उसे ऑगरी सन के बारे में बताया करती थी, ओके। वह अपनी बच्ची से शरारती अपनी बेटी को उस शैतान राक्षस दानव सन के बारे में बताती थी जो तारों को सब करना, इट्स मीन कि तारों को थोड़ा थोड़ा सा करके खाना पसंद करता था अपनी डिनर के लिए, ओके, अपनी रात की भोजन के लिए, ओके। एंड हु आस्क्ड नो बेटर पास टाइम देन इन गोबलिंग कॉमेट्स अप, ओके, एंड मीन्स और हु मीन्स जो, आस्क्ड नो बेटर पास टाइम, स्टूडेंट्स हियर द मीनिंग ऑफ पास टाइम दैट प्ले करना, खेलना, ओके, खेल खेल में। एंड गोबलिंग, स्टूडेंट्स हियर द मीनिंग ऑफ गोबलिंग इज कि ईटिंग समथिंग वेरी फास्ट एंड ग्रीडिंग, इट्स मीन कि किसी चीज़ को बहुत ही जल्दी से और लालच से खाना, ओके, तो उसे बोलते हैं गोबलिंग करना। तो और जो सन था वो बहुत ही क्रूल था, ओके। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि हियर द मदर ऑफ कॉमेट वांट्स टू टेल हर अबाउट सन दैट इट इज़ वेरी बैड, ओके। तो जो कॉमेट की जो मदर है, उसकी माँ है, वो उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि जो सन जो है वो बहुत बैड है, एक गाय की तरह ओगरी है वो, ओके। और वो क्या करता है, डिनर के लिए स्टार्स को खा जाता है। अगर कोई भी उसके पास जाते तो वो हमेशा से मना करती थी कि बेटा सन के पास मत जाना, ओके। तो और पता ही नहीं चलता है था कि वह खेल खेल में कब कॉमेट्स, इट्स मीन धूमकेतुओं को खा जाते, इट्स मीन कि द मदर ऑफ कॉमेट वांट्स टू टेल हर दैट इट्स अ गेम फॉर द सन टू ईट कॉमेट्स फॉर इट्स डिनर हु गोज नियर, इट्स मीन कि जो कॉमेट की माँ है, ओके, वो उसे ये समझाना चाहती है कि बेटा सन बहुत ही बैड है, बहुत ही ऑगरी है, वो डिनर के लिए कॉमेट्स को, धूमकेतु को इतना क्यूकली, इतनी जल्दी से, इतना ग्रेटली, इतनी लालच से खा जाते हैं ना, जैसा कि ये उसके लिए गेम है, ओके। वह अपनी डॉटर उस नॉटी लिटिल कॉमेट को एडवाइस करती है कि आप कभी भी सन के पास मत जाइएगा, ओके, क्योंकि वो मतलब इतनी जल्दी से, इतनी क्विकली कॉमेट्स को सब कर जाता है, ओके, कि उसके लिए ये गेम जैसा है, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा। But instead of growing courteous and of showing proper fear, the foolish little comet is up nearer and more near. Okay, it's mean कि क्या होता है, लेकिन अपनी माँ की बात मानने की बजाय, सावधानी बरतने की बजाय, उस ऑगरी सन से डरने की बजाय, अपनी माँ की बात सुनने की बजाय, वो कॉमेट क्या करती है, वो फुलिश लिटिल कॉमेट, ओके, वो मूर्ख छोटी सी धूमकेतु उस सन के पास जाती है, और फिर और पास जाती है, उसके पास जाती रहती है, ओके। और उस सन के पास जाने की वजह से फिर थोड़ा सा मिल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी टेल निकल आती, ओके। वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट दिस लिटिल नॉटी हैज अ साउसी टेल नाउ, ओके। तो हम देख सकते हैं कि अभी जो लिटिल नॉटी कॉमेट है वो सन के पास जा रही है, ओके। तो उसकी एक सॉसी टेल है, ओके, एक टेल निकल आई है। सॉसी इट्स मीन होता है कि स्पष्ट, ओके, तो या स्वच्छ, तो उसकी एक स्वच्छ टेल निकल आई है, और ये है सन, ओके, जो बहुत ही ऑगरी है, ओके। तो इसके पास जैसे ही गई तो इसकी एक टेल हो गई, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा। सी स्विच्ड हर सॉसी टेल अलोंग राइट वेयर द सन कुड सी एंड flittered with old Mars and was as bold could be, okay. She used her saucy tail along right where the sun could see, it's mean कि वह क्या करती है, वह अपनी saucy tail, it's mean कि अपनी सच टेल को, अपनी सच पूंछ को राइट डायरेक्शन की ओर घुमाती है, जिससे कि वह सन उसे देख सके, और फिर वह फ्लर्ट करती है, ओके। स्टूडेंट्स हियर द मीनिंग ऑफ फ्लर्ट दैट कि वो टॉक करने लगती है, बातें करने लगती है, ओके। और जितने भी ओल्ड मार्स थे, इट्स मीन पुराने जो पिंड होते हैं ना, उनको वो ये शो करती, ये दिखाती कि वह कितनी मिच्योर है, कितनी समझदार है, ओके। एंड इट्स मीन कि अपनी बातों से वह उन
ओल्ड मार्क्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करती है. सो स्टूडेंट्स, वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट दिस इज नॉटी लिटिल कॉमेट विद इट्स साउसी टेल एंड इट कम्स नियर एंड मोर नियर टू दिस ऑर्गी सन. ओके, तो स्टूडेंट्स ये वही नॉटी लिटिल कॉमेट है अपनी सॉसी टेल के साथ में, इट्स मीन अपनी स्वच्छ पूंछ के साथ में. ये वही शरारती छोटी सी धूमकेतु है जो ऑर्गी सन, इट्स मीन दानव जैसे सूरज के पास में आती जाती है और पास में आती जाती है. ओके, and students, this is Orgy sun who subs to comets for its dinner which comes near its. Okay, तो ये वही ऑर्गी सन है, दानव रूपी सूरज है जो कॉमेट्स को सब्स कर जाता है. ओके, जो धूमकेतुओं को खा जाता है अपने डिनर के लिए, अपने रात के भोजन के लिए जो भी इनके पास में आते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दीज आर ओल्ड मार्स, और ये जो ब्लू एंड रेड कलर के ना, ये ओल्ड मार्स है. ओके, पुराने पिंड है. एंड स्टूडेंट्स, दीज आर ओल्ड स्टार्स. ओके, 1 and 2 है ना, तो ये ओल्ड स्टार्स है, ये पुराने तारे. क्लियर? So students, we have read and explained summary of 1st to 5th number stanzas which is in your page number 102 of the chapter 10 in Naughty Little Comet of our English Literature book as fifth in our today's class. And I hope you must have understood summary of 1st to 5th number stanzas of the chapter 10 which we have read in our today's class. And I hope you have no problem in any line, in any word in these stanzas of this chapter 10. Okay, so students, we shall read remaining stanzas of this chapter 10 in our next video. And students, now I'm going to describe your classwork and homework. So all students, listen to my words clearly. Students, today's your classwork is that read 1st to 5th number stanzas which is page number 102 of this chapter 10 in Naughty Little Comet from your English Literature book as fifth semester, and try to find out the summary of these stanzas and send me a voice recording here. It's your today's classwork. And students, today's your homework is that learn 8-line poem with its poet name of the chapter 10 in Naughty Little Comet from your English Literature book as fifth semester. It's your today's homework. Okay, so all students, firstly complete your classwork. Read 1st to 5th number stanzas of the chapter 10 in Naughty Little Comet from your English Literature book as fifth semester, and try to find out the summary of these stanzas and send me a voice recording here. Thank you.